ہر سنڈے ہم خدا کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں، گھروں میں بائبل ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آن لائن مختلف خادمین کو دیکھتے ہیں جو خدا کا پاک کلام سناتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ پاک کلام جو ہے وہ روح القدس کی تحریک سے لکھا گیا اور یہ خدا کا عطا کیا ہوا کلام ہے، خدا کے الہی مکاشفات ہیں جو انسان پر ظاہر ہوئے، اور جو خدا کے خادمین ہیں، جو رائٹرز ہیں، انہوں نے خدا کے روح کی تحریک سے ان کتابوں کو لکھا ہے۔ جب بھی ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں تاریخ بتاتی ہے، یہ کتاب ہمیں وہ ساری باتیں بتاتی ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے ابراہیم کو نہیں دیکھا، ہم نے اسحاق یعقوب کو نہیں دیکھا، ہم نے موسیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے داؤد کو نہیں دیکھا، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ ہم بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، آپ لوگ مبارک ہیں، ہم مبارک ہیں، کیونکہ ہم نے نہ موسیٰ کو دیکھا، نہ ہم نے ایلیا کو دیکھا، نہ ہم نے دوسرے نبیوں اور پیغمبروں کو دیکھا، نہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا۔ یہ کتاب ہمیں اس ساری پرسنالٹیز کے بارے میں اور خدا کے کاموں کے بارے میں، خدا کے الہی مکاشفات کے بارے میں، خدا نے جو کام لوگوں کی زندگیوں میں کیے ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے جو ہماری زندگی پر امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے ہم کیسے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ ہم نہیں جانتے تھے جب تک یہ مقدس پاک کلام ہمیں نہیں بتاتی کہ موسیٰ کون تھا، ہم نہیں جان سکتے تھے جب تک ہمیں ابراہیم کے بارے میں نہیں پتا چلتا، جب تک کہ یہ مقدس کتاب جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ نہ کرتی۔ نہ صرف اس میں ہمیں ہسٹری ملتی ہے، جینیالوجی بھی ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پروفیسائی موجود ہے، جو ہے وہ وزڈم موجود ہے، اس میں مختلف پیرابلز موجود ہے، اس میں مختلف لاز جو شریعت کے لا ہیں، جو قوانین ہیں، جو شریعت کے مطابق موسیٰ کو عطا کیے گئے، وہ آج بھی اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بائبل مقدس جو ہے اس میں ہمیں ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ بڑا یونیک ہے۔ جب اور کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں بڑی مختلف نظر آتی ہے۔ جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس سے برکت ملتی ہے۔ نہ صرف بائبل مقدس میں ہمیں ہسٹری ملتی ہے، بائبل مقدس میں ہمیں پوئٹری ملتی ہے اور نبیوں کے صحیفے ملتے ہیں، اور مختلف انداز جو ہیں وہ تحریر کے ہیں جو ہمیں بائبل مقدس میں مل جاتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ پرانی عہد نامہ موجود ہے، یرمیہ میں، حزقیل میں، دانیل میں، ہوسیہ میں، اور یوئیل، عموس، حجی نبی کی کتاب اور زکریا کی کتاب۔ تو یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ پروفیسیز ہیں اس میں جو ہمیں آگے پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اپوکلپٹک بکس بھی ملتی ہیں، مکاشفاتی کتابیں، جیسے کہ ہم دانیل کی کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، حزقیل کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یوحنا عرف کا جو مکاشفہ ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں مکاشفات کی باتیں بھی کی گئی ہیں جو بعض اوقات آپ کے اور میرے پڑھنے میں ہمیں مشکل کا پیش آتی ہے، ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے جب تک کہ ہم اس کی تفسیر نہیں پڑھ لیتے۔ اگر ہم اپنی عقل، اپنی سوچ سے پڑھیں گے تو ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم اچھے اسکالرز کی تشریحات ان کے مطابق دیکھتے ہیں تو پھر جا کر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بات، یا ہم خود بائبل مقدس سے اتنا زیادہ نالج رکھتے ہوں بائبل مقدس میں کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھیں تو یسوع مسیح بعض اوقات جو ہے وہ اصطلاحی زبان استعمال کرتے تھے، جسے میٹافوریکل لینگویج کہتے ہیں، اور
कभी या फिर अलामती जुबान का, सिंबॉलिक लैंग्वेज का भी इस्तेमाल हम देख सकते हैं। कभी आपने गौर किया कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो। असल में तो आप नमक नहीं है, आप तो ह्यूमन है, लेकिन यहां पर अलामत जो है वो आपको नमक से तशबीह दी गई, मेटाफोरिकल लैंग्वेज यूज की गई। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बदन फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। तो ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। इस तराती जुबान इसका उर्दू तर्जुमा है। और सिंबॉलिक लैंग्वेज, और बाज़ औक़ात पर वो कहते हैं कि खुदावंद जो है वो हयात का दरख्त है, मैं पानी हूं, मैं रोटी हूं। तो ये सारी चीजें जो है मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। इसके अलावा हम न्यूमरोलॉजी बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं कि नंबर्स का जिक्र किया गया है। मुकाशवा की किताब में देखें तो वहां पर हमें मिलता है 666 का नंबर, हमें 777 का नंबर मिलता है। उसके अलावा हमें 7 सर, 7 सींग, 7 आसमान, खुदा की 7 रूहें, उसके अलावा हमें 12 ताज, 12 तख्त, और ये न्यूमरोलॉजी है जो हमें मुकाशवा की किताब में मिलती है। और हम तब तक इन चीजों को सीख नहीं सकते जब तक हम बाइबल की सही तफसीर को नहीं पढ़ते, या हम आलमीन की जो तशरीहात हैं उनको नहीं पढ़ सकते, या खुदा का रूह हमें आगाह नहीं करता कि हम उसको सीखें। का पाक कलाम जो है वो हमें बड़ा यूनिक नजर आता है, और बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती। जिस तरह से फिलिपस जो है वो एक राह से गुजर रहा था तो उसे वहां पर हबशी खोजा मिला, और वो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता जा रहा था। फिलिपस ने उससे कहा कि तू क्या पढ़ता जा रहा है, और उसने यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोई थी वो उसको पढ़ता हुआ जा रहा था। लेकिन उसने कहा कि मैं इसको तब तक समझ नहीं सकता जब तक कोई मुझे समझा ना दे। तो बाज खुदा के कलाम की ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने तौर पर नहीं समझ सकते, जो खुदा के खादमीन बता देते हैं। वो चीजें जो तशरीहात, जो पढ़े लिखे खादमीन हैं या जो थियोलॉजिकल जिन्होंने ट्रेनिंग्स की हैं, वो उनकी तशरीहात या हम आलमीन की किताबें पढ़कर उनसे उसकी सही तशरीह जो है वो जान सकते हैं। हबशी खोजे ने फिलिपस से कहा कि जब तक कोई मुझे बताएगा नहीं कि इसका मतलब क्या है, मैं किस तरह से जान सकता हूं। और फिर फिलिपस ने उन आयात की तशरीह की, और फिलिपस ने यीशु मसीह के बारे में जो है वो हबशी खोजे को बताया, और उसके बाद हबशी खोजे की जिंदगी जो है वो तब्दील हो गई। और वो उसने कहा कि पानी भी यहां पर मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोक सकती है। जब कलाम की तशरीह की गई तो उसकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो गई। तो खुदा का कलाम जो है वो जिंदगियां तब्दील करता है। खुदा का कलाम जो है वो ऐसी बातें बताता है। कई चीजें तो बहुत आसान होती हैं हमारे जानने के लिए, सीखने के लिए, हम फ्लो में पढ़ते रहते हैं, हमें बड़ी आसान मालूम होती है। लेकिन जब हम अपोकलिप्टिक जो मकाशफात हैं जो है उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमारी समझ में नहीं आते। जैसे डैनियल की किताब में या हिस्कियल की किताब या मकाशवा की किताब में जो चीजें लिखी गई हैं उसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो खुदा के पाक कलाम की एक खूबसूरती है कि खुदा का पाक कलाम हमारे दिलों पर चोट लगाता है। खुदा का पाक कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में तब्दीली का बायस बनता है। पतरस जब कलाम सुनाता है तो 3000 के करीब लोग तब्दील हो जाते हैं और उनके दिलों पर चोट लगती है। तो खुदा का पाक कलाम हमें यह बताता है कि खुदा का कलाम दिलों पर चोट लगाता है। और वो चोट क्या है? वो चोट है दिल की तब्दीली का नाम। जब खुदा का पाक कलाम हमें मुजरम ठहराता है, खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि वो काम जो हम करते हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर हमारे दिलों पर चोट लगती है। और जब दिलों पर चोट लगती है तो उसके वसीला से जिंदगियां तब्दील होती हैं। वो होता है एहसास गुनाह।
जब इंसान के दिल पर चोट लगती है और वो पछताता है, वो होता है तौबा की तरफ फर्स्ट स्टेप। जब इंसान पछताता है और उसके बाद फिर जो है वो दूसरा स्टेप आता है और वो है इकरार गुनाह, जिसमें हम खुदा के हुजूर में अपने गुनाह का इकरार करते हैं। तो खुदा का कलाम जो है वो दिलों पर चोट लगाता है। तो ये खुदा के पाक कलाम की खूबसूरती है कि वो दिलों को तब्दील कर देता है। आज भी वो लोग जो कहते हैं बाइबल बदल गई है, बहुत सारे लोगों ने बाइबल मुकद्दस का जब मुतालिया किया है तो वही बदल गए, उनकी जिंदगियां बदल गई। खुदा के पाक कलाम ने उनको ही तब्दील कर दिया, क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं है। जिस शख्स ने इस किताब को दिल के साथ पढ़ा है, जिसने इसको रिसर्च के तौर पर पढ़ा है, जिसने इसको बरकत के लिए पढ़ा है, इस कलाम ने उसको बरकत दी है। इस कलाम के वसीला से बड़ी जिंदगियां तब्दील हुई हैं और खादम सारी जिंदगी जो है वो इस किताब में से कलाम सुनाते रहते हैं, कलाम सुनाते रहते हैं। कलाम खत्म नहीं होता। खादिम एक चला जाता है, दूसरा चला जाता है, तीसरा चला जाता है, लेकिन ये कलाम जो है इस कदर गहरा है कि ये खत्म होने वाला नहीं। और मैं बाज़ औक़ात इस बात को शेयर करता हूं कि जब भी मैं उन हवाला जात को पढ़ता हूं जो मैंने पहले ही पढ़ रखे हैं, तो हर दफा पढ़ने में मुझे एक नई बात समझ में आती है, एक नई चीज सीखने को मिल जाती है। और ये वो गहरे भेद है, जैसे यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि गहरे में ले चल, और जब उन्होंने गहरे में जाकर जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां पकड़ लाए। तो खुदा का पाक कलाम भी ऐसा ही है। अगर हम इसकी मोर स्टडी करेंगे, अगर हम और गहरे में जाएंगे, अगर एक बात लिखी हुई है, अगर हम उसकी तह में जाएंगे, तो हम मोर नॉलेज गेन करेंगे, मोर चीजें सीखेंगे, और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती जाएंगी जिस कदर हम इसकी स्टडी करते रहेंगे। तो इस नए साल के मौका पर मैं आपको ये जरूर तलकीन करना चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि जरूर बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया करें। चाहे दिन में एक चैप्टर करें, 2 चैप्टर करें, या एक ज़बूर पढ़ें, या लेकिन बाइबल मुकद्दस से जुड़े रहें। ये वो किताब है जो जिंदगियों को बदल देती है, जो बरकत का बाइस बनती है। ये खुदा के मुंह के अल्फाज है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये इंसान के अल्फाज नहीं है। जब हम इन अल्फाजों को, इन आयात को पढ़ते हैं, इन बातों को पढ़ते हैं, तो उसके वसीला से हमें बरकत मिलती है। और ये हमें वो रास्ता कलाम दिखाता है जो कोई आम इंसान नहीं बता सकता। कभी भी कोई जितनी बड़े मर्जी बड़े बड़े स्कॉलर्स की किताबें पढ़ के देख लें, वो शायद आपको जिंदगी गुजारने या जिंदगी में सक्सेसफुल होने का तरीका तो बता सकती हैं, लेकिन ये वो किताब है जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे सामने है। अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बरकत पाना चाहते हैं, खुदा से कुछ भी लेना चाहते हैं, या आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, तो ये किताब हमारे लिए बरकत का बाइस है। तो हमें इसका मुतालिया जो है वो एक नए साल में जरूर करने की जरूरत है। कि मैंने 4 दफा इस बाइबल मुकद्दस को पूरा पढ़ा है, तो मैंने इसी तरह से पढ़ा कि हर रोज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं इसके 1 या 2 चैप्टर जरूर पढ़ता हूं, और इसी तरह से पढ़ता पढ़ता 1-1.5 साल में बाइबल मुकद्दस जो है वो कंप्लीट हो जाती। तो हर दफा जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने इसको अंडरलाइन किया। हर दफा जो पहले चीजें अंडरलाइन की, और नेक्स्ट टाइम जब मैंने उसी हवाले को दोबारा पढ़ा तो मैंने नई चीजों को अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करने का मकसद मेरा ये होता है कि हम और गौर करें इस बारे में कि इस चीज का क्या मतलब है, ये खुदा का पाक कलाम मुझे और आपको क्या बताना चाहता है, इसका हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है। और मैंने उसको अंडरलाइन
करता रहा। अब मेरी बाइबल मुकद्दस पे इतने निशान लग चुके हैं, मेरी बाइबल भी अभी काफी साल पुरानी हो चुकी है। और एक दफा मैंने पहले इस बात का जिक्र किया था कि जो लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं उनकी बाइबल आप देखें तो वो थोड़ी मैली मैली सी हुई होती है, थोड़ी लाइक उसके पेज रफ हुए होते हैं, क्योंकि वो उनको पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के सफों को उन्होंने जो है वो रफ कर दिया होता है। लेकिन जो लोग नहीं मुतालिया करते उनकी बाइबल मुकद्दस बिल्कुल नहीं होती है, और वो ऊपर तो रखी होती है, शायद पाकीज़गी के तौर पर सजाकर किसी टॉप जगह पर रखी होती है, ताकि खुदा का पाक कलाम है उसकी कदर करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। उन्हें टॉप पर तो रखा होता है लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। तो ये बात इंतहाई जरूरी है कि खुदा के पाक कलाम का मुतालिया करें। ये इलाही भेद है, ये इलाही मुकाशफात है जो खुदा की रूह की तहरीक से लिखे गए, खुदा के रूह की तहरीक से हम तक पहुंचे हैं और एक किताब की सूरत में पहुंचे। और जो लोग इस बात से वाकिफ है कि किस तरह से इन किताबों को शामिल करके बाइंड करके एक बाइबल मुकद्दस जो है हमारे सामने मौजूद है, तो उनमें से बहुत सारी किताबों को निकाल भी दिया गया। जो गैर इल्हामी किताबें थी उनको इसमें से निकाल दिया गया, और जो इल्हामी किताबें थी उनको जोड़कर जो है वो एक फॉर्म दी गई बुक की, जिसे बाइबल कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस का मतलब है किताबों का मजमुआ। तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत है। ये इल्हामी किताबें हैं, ये गैर इल्हामी किताबें नहीं। और जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो ये बड़ी बरकत का बाइस बनती है। तो हम जरूर इस नए साल में, अगर हमने बाइबल मुकद्दस का मुतालिया शुरू नहीं किया, तो हमें जरूरत है कि हम चाहे जितना भी हमारे पास टाइम हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया शुरू करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले हों। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।